کائنات میں بسنے والے ہر فرد کی کامل رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سب سے آخر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے آن جناب کے سر پر تمام جہانوں کی سرداری و نبوت کا تاج رکھ کر اعلان کر دیا گیا کہ اے دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ان سے رہنمائی حاصل کرو اور دنیا و آخرت کی ابدی خوشیوں اور نعمتوں کو اپنا مقدر بناؤ۔ گویا کہ اس اعلان میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو دعوت عام دی گئی ہے کہ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جس قسم کی بھی رہنمائی چاہتے ہو، جس وقت چاہتے ہو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم میں طلب صادق ہو، چنانچہ تاجر ہو یا کاشتکار، شریک ہو یا مزدور ہو یا کوئی بھی محنت کش، ماں ہو یا باپ، بیٹا ہو یا بیٹی، میاں ہو یا بیوی، مسافر ہو یا مقیم، صحت مند ہو یا مریض، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر وہ چاہے کہ میرے لیے میرے شعبے میں رہنمائی ملے تو اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی میں نمونہ موجود ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کھڑا کیا ہے کہ میرے اس محبوب کو دیکھو، تمہیں ہر چیز ملے گی، اپنے سے متعلق روشنی حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی اتباع کرنے میں بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے امت کی آسانی اور سہولت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے خوب سے خوب محنت کی، بے شمار کتب تصنیف کی، تاکہ کوئی بھی شخص اپنے شعبے سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا چاہے تو اسے بغیر دقت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات معلوم ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے اور محبت کا تقاضا بھی، اور یہ بات بھی پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ یہ حق اور تقاضا صرف ماہ ربیع الاول کے پہلے 12 دن یا پورے مہینے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے۔ ان سطور سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو سمیٹنا نہیں ہے بلکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے تجارت کے پہلو کو واضح کرنا مقصود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور رزق حلال سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک نبوت ملنے سے قبل کا اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا۔ اول الذکر کا دورانیہ 40 سال ہے اور ثانی الذکر کا دورانیہ 23 سال۔ اس دوسرے حصے کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ نبوت سے قبل کی معاشی کیفیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے کوئی خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ جناب بچپن سے ہی محنت و مشقت کر کے اپنی آپ ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے۔ ملک شام کی طرف پہلا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے، پہلا اپنے چچا کے ہمراہ، لیکن اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر شریک نہ تھے بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لیا تھا۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب والا مشہور واقعہ پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی خاطر مکہ واپس بھیج دیا۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ اور دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاجر خدیجہ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر اجرت پر کیا۔ قصہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
25 बरस के हो गए तो आपके चचा अबू तालिब ने कहा कि ए भतीजे, मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरे पास माल नहीं है। ज़माना की सख्तियाँ हम पर बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारी कौम का शाम की तरफ सफ़र करने का वक्त करीब है। खुदीजा बिनते खुलद अपना तिजारती सामान दूसरों को देकर भेजा करती है। तुम भी उजरत पर उसका सामान ले जाओ, उससे तुम्हें माकूल मुआवजा मिल जाएगा। ये गुफ्तगू हज़रत खुदीजा को मालूम हुई तो उसने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम देकर बुलवाया और कहा, जितना मुआवजा औरों को देती हूँ आपको इससे 2 गुना दूँगी। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी जानिब खींच कर भेजा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। आपके हमरा हज़रत खुदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी था। जब काफ़िला शाम के शहर बसरा में पहुंचा तो वहां नस्तूरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबुव्वत की इलामात पहचान कर आपके नबी आखिरुज़्ज़मां होने की पेशगोई की। दूसरा अहम वाक़या ये पेश आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती सामान फ़रोख्त कर लिया तो एक शख्स से कुछ बातचीत बढ़ गई। उसने कहा कि लातो इज़ा की कसम उठाओ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खलफ्त बिहिमा कात व इन्नी ला उम्र फारिज अनहुमा। मैंने कभी इन दोनों की कसम नहीं खाई, मैं तो इनके पास से गुजरते हुए उनसे मुंह मोड़ लेता हूँ। उस शख्स ने ये बात सुनकर कहा, हक बात तो वही है जो तुमने कही। फिर उस शख्स ने मैसरा से मुखातिब होकर कहा, खुदा की कसम, ये तो वही नबी है जिसकी सिफ़ात हमारे उलमा किताबों में लिखी हुई पाते हैं। तीसरा वाक़या ये पेश आया कि मैसरा ने देखा कि जब तेज़ गर्मी होती तो 2 फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहे होते थे। ये सब कुछ देखकर मैसरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मुतासर था। वापसी में ज़ोहर के वक़्त जब वापस पहुँचे तो हज़रत खुदीजा ने अपने बालाखाने में बैठे बैठे देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बैठे इस तरह तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 फरिश्तों ने आप पर साया किया हुआ था। हज़रत खुदीजा और उनके साथ बैठी हुई औरतों ने यह मंजर देखकर बहुत ताज्जुब किया और फिर जब मैसरा की ज़बानी सफ़र के अजायब, नफ़ा कसीर और नस्तूरा राहिब और उस झगड़ा करने वाले शख्स की बातें सुनी तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। खुदीजा बहुत ज़्यादा दूरअंदेश और मुस्तकिल मिजाज, शरीफ, बाइज़्ज़त और बहुत मालदार औरत थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजकर निकाह कर लिया। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। यमन की तरफ 2 सफ़र। जो तिजारती असफ़ार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वजह से किए, उनमें 2 सफ़र यमन की तरफ भी थे। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुस्तदरक में नकल किया है कि हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम को जर्श यमन के एक मकाम की तरफ 2 बार तिजारत के लिए ऊँटनियों के एवज़ भेजा। बहरीन की तरफ सफ़र। नबुव्वत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरीन की तरफ सफ़र करने का भी इशारा मिलता है। वो इस तरह कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अरब के तमाम दूर दराज मकामात से वफूद हाज़िर खिदमत होते रहे, इन्हीं वफूद में बहरीन से वफ़द अब्दुल कैस भी आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले वफ़द से बहरीन के एक एक मकाम का नाम लेकर वहाँ के अहवाल दरियाफ़्त फरमाए। तो लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारे मुल्क के अहवाल हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हारे मुल्क में खूब घूमा हूँ। हवाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र मुबारक के 25वें साल तक तिजारती असफ़ार में अपने अखलाक़ करीमाना, हुस्न मामला, रास्तबाजी, सिद्क़ व दयानत की वजह से इतने ज़्यादा मशहूर हो चुके थे कि खल्क़े खुदा में आप सादिक़ व अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए थे। लोग खुले एतमाद के साथ आपके पास बेधड़क अपनी अमानतें रखवाते थे। इन खसाइल की बिना पर हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रग़बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुई थी और पैगाम निकाह भेज दिया था। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना। तिजारती मामलात की कामयाबी के लिए मामलात की सफाई और लड़ाई झगड़े से परहेज़ अहम तरीन किरदार अदा करता है और ये सिफ़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदरजा उत्तम मौजूद थी। चुनांचे हज़रत कैस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना जाहिलियत में मेरे शरीक होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरका में से बेहतरीन शरीक थे। न लड़ाई करते थे और न ही झगड़ा करते थे। हवाला।
बासो तकरार से इजतनाब। मुसलमान ताजर की सिफ़ात में से एक सिफ़त मामलात के वक्त शोर शराबा और आपस की बेजा बहसो तकरार से बचना भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ़ अज़ीम की गवाही ज़माना नबुव्वत से पहले भी दी जाती थी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपके असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी तारीफ़ और मेरा तज़किरा करने लगे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी निस्बत इनसे ज़ायद वाकिफ़ हूँ। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच फरमाते हैं। आप ज़माना जahलियत में मेरे शरीक होते थे और आप कितने बेहतरीन शरीक होते थे कि ना शोर शराबा बहसो तकरार करते थे और ना झगड़ा करते थे। हवाला किताब इफ़ाए ऐद। वादों की पासदारी ताजर की बहुत बड़ी खूबी शुमार होती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये वसफ़ कैसा था, इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबूवत मिलने से कबल आपसे ख़रीद फ़रोख्त का एक मामला किया। ख़रीदी गई शय की कीमत में से कुछ रकम मेरे ज़िम्मा बाकी रह गई, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं कल इसी जगह आकर आपको बकिया रकम अदा करूँगा। फिर मैं भूल गया और मुझे 3 रोज़ बाद याद आया। मैं उस जगह गया तो देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुमने मुझे अज़ियत पहुँचाई, मैं 3 दिन से इसी जगह पर तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। हवाला। नबूवत के बाद मुआशी सूरत हाल। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिल जाने के बाद हसूल मुआश के लिए कुछ किया या नहीं, इस बारे में बिल इत्तिफ़ाक़ कौल फ़ैसल ये है कि बेसत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहनत और तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अहयाए दीन मतीन की तरफ मबज़ूल कर दी थी। बेसत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी किस्म की मुआशी मशगूलियत का सबूत नहीं मिलता है। अलबत्ता दीन के दीगर शोबों की तरफ रहनुमाई की तरह इस शोबे की भी बहुत वाज़ह और तफसीली अंदाज में रहनुमाई की। इस मैदान से कामयाबी के साथ गुजर जाने वालों को जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बशारतें सुनाई, तो वहाँ इस मैदान के चोर डाकुओं और ख़ाइनों को वईदें सुना कर उन्हें लौट आने की तरफ भी मुतवज्जा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात का जायज़ा लिया जाए तो इबादत के अहकाम और मामलात के अहकाम में 1 और 3 की निस्बत नज़र आएगी, यानी इबादत के मुतल्लिक़ अहकाम 1 गुना और मामलात से मुतल्लिक़ अहकाम 3 गुना मिलेंगे। चुनांचे कुतुब फ़िक़ह में अहम तरीन किताब हदाया को देख लिया जाए कि इसकी 4 ज़मीम जिल्दों में से सिर्फ़ 1 जिल्द इबादत के बारे में और 3 जिल्दें मामलात के बारे में हैं। इसी से शोबा मामलात की अहमियत का अंदाज़ा कर लिया जाए। एक गलत ज़हन की इस्लाह। मौजूदा दौर में एक तबका कम अक्ली और कम इल्मी की वजह से ये ज़हन रखता है कि मेहनत करने और कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो रिज़्क़ देने में हमारी मेहनत के मोहताज नहीं हैं, वो ऐसे भी देने पर कादिर हैं, लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम तो अमाल के ज़रिए अल्लाह से लेंगे, असबाब के ज़रिए नहीं। तो इस बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि एक है असबाब का इख्तियार करना और उन्हें इस्तेमाल करना, और एक है इन असबाब को दिल में उतारना और इन पर यकीन रखना। पहली चीज़ को अपनाना महमूद और मतलूब है और दूसरी चीज़ को अपनाना मज़मूम है। हमारी मेहनत का रुख ये होना चाहिए कि हम इन असबाब की मोहब्बत और यकीन दिल से निकालें और इसके बरक्स यकीन अल्लाह ताला पर रखें कि हमारी हर तरह की ज़रूरियात पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। वो चाहे तो असबाब के ज़रिए हमारी हाजात और ज़रूरियात पूरी कर दे और चाहे तो इन असबाब के बग़ैर महज़ अपनी कुदरत से हमारी ज़रूरियात और हाजात पूरी कर दे। वो इस पर पूरी तरह कादिर और ख़ुद मुख्तार है। अलबत्ता हम दुनिया में असबाब इख्तियार करने के पाबंद हैं ताकि बवक्त हाजत और ज़रूरत हमारी निगाह व तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ ना उठ जाए। इस बात में तो कोई शक व शुबा है ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मेहनतों के मोहताज नहीं हैं, लेकिन क्या शरीयत का मिजाज और मंशा भी यही है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें, बिलखसूस जब इस तरक असबाब का नतीजा ये निकलता हो कि बीवी बच्चों और वालिदैन के हकूक़ तलफ़ होते हैं और ये गैरों के अम्बाल की तरफ हिर्स व हवस के साथ देखता रहता है। तो याद रखें कि इस तरह के लोगों को शरीयत इस तर्ज़ अमल की तालीम नहीं देती,
بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ کما کر کھاؤ، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تونگری کی وجہ سے آج کے دور میں ہمارا دین و ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فکر و فاقہ کہیں کفر و شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور یقین و توکل کے اعلیٰ درجہ پر فائز لوگوں کا معاملہ اور ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔